quality I mean to say, they are improving the skin quality, they will improve the eyes quality, they will improve the teeth quality. Okay, so because of the vitamins it is possible. Okay, our resistance against the diseases also increases. Mineral also plays the same role. They also takes a part into increasing immunity power. Okay, also they help us to fight against the disease. Fiber also plays an important role. Fiber also helps us to improve the immunity power. Okay, somehow also it helps us to build the not to build takes a part into the excretory system basically. Okay, so digestive system में फाइबर का बहुत importance है. Also I will include water as well, not as a nutrient, but water also plays an important role to maintain our body temperature. So all these nutrients basically helps us for our daily routine work, also helps us for the growth of body and keep our body healthy. Okay, so that our body can fight against the diseases. So this is the importance of nutrients. Now how we consume these nutrients, that is one task. And if we take the nutrients, how these nutrients reach to all parts of the body. Okay, so first thing is nutrients हम लोग ने ले चुके. For example, nutrients we can take by mouth. Okay, and so on. Plants take from the leaves. Okay, तो ये अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पकड़े तो न्यूट्रिएंट्स का हम लोग को क्या करना है. Nutrients cannot directly get digest, that's why we need to break them down. Okay, so break करने के लिए हमारे पास various, देखो ये nutrients will take from mouth. Okay, so it will come in our digestive system, right? तो digestive system का part यहाँ पे आएगा. Okay, digestive system में क्या होगा, many acid will take a part. Okay, to break down the nutrients. Okay, leaves में क्या होगा, leaves will take a sunlight, they will take a water, they will take nitrogen from the environment and they will do the chemical reaction. Okay, with the help of carbon dioxide. ठीक है, and so on they will prepare their own food. That is different part. Over here nutrients का we are talking about animals. Okay, so acid से क्या होगा, nutrients will break down. Okay, now for example nutrient carbohydrate है, carbohydrate से क्या होगा, वो एसिड थ्रू ब्रेक डाउन हुआ और स्मॉल चंक्स में इट गेट्स डिवाइडेड. नाउ दिस चंक विल गेट मिक्सड अप विद द ऑक्सीजन. ओके, विल गेट मिक्सड अप विद द ऑक्सीजन, मतलब ये चंक्स का ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ एंड सो ऑन. क्या बना, कुछ एनर्जी. ओके, and this energy which is the ATP energy we are using for our daily work. So basically nutrients से small simple substance बनने के लिए we need digestive system and ये chunks को ऑक्सीजन के साथ मिलाने के लिए we need respiratory system, because through respiratory system we are taking oxygen get mixed up with this one and this combo makes the energy. No doubt other material it also makes, but we need to focus on energy because the energy which we are using for our daily work, right? Also this energy is helpful for the growth, fight against the immunity. Okay, fight against the diseases, to improve the immunity. तो ये सब जो चीजें हैं, okay, means after this activity means this chemical reaction energy भी मिलती है and some other stuffs भी मिलते हैं. okay, जो immunity power बढ़ाने के लिए, growth के लिए हम लोग को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. ठीक है, एनर्जी इन सभी चीज़ों में हम लोग को लगेगी ही लगेगी. ओके, बिकॉज ग्रोथ करने के लिए भी नो डाउट वी नीड प्रोटीन, बट टू प्लेस द प्रोटीन वी नीड एनर्जी. ओके, इम्यूनिटी पावर में भी हम लोग को वी नीड टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज, दैट टाइम ऑल्सो वी नीड एनर्जी. ओके, फॉर डेली वर्क ऑल्सो वी नीड एनर्जी. ओके, सो हम लोग को जो लाइव प्रोसेसेस में पढ़ना है दैट इज हाउ दिस फंडा वर्क्स. ओके, तो बाय ईटिंग the food stuff
it get oxidized means mixed up with the oxygen and we gets energy. Okay, so ये जो फंडा है, ये फंडा we need to see. Okay, इसका ही जो टॉपिक है that comes under a cellular respiration. Okay, आपने अभी तक खाली रेस्पिरेशन प्रोसेस सुना रहेगा वेयर वी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, वाइजी वर्सा, प्लांट takes carbon dioxide and releases oxygen, but over here we are going to talk about cellular respiration. Cellular respiration with oxygen या फिर without oxygen दोनों तरीके से वर्क हो सकता है, but that happens inside the cell. Okay, तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे हम लोग को ये वाले की बात करना है, सेलुलर रेस्पिरेशन का. बट सेलुलर रेस्पिरेशन का डिपेंडेंसी रेस्पिरेटरी सिस्टम से है. ओके, in some animal. So let's move for the cellular respiration topic. But before going to cellular respiration, we are going to discuss few key points, important notes. Okay, what is oxidation and how we are getting the energy. Okay, few highlighted points we'll discuss. Okay, which will come in the fill in the blanks. Okay, so let's see the important notes. So we get 4 kilocalorie energy per gram of carbohydrate. Carbohydrate खाने के बाद we get 4 kilocalorie per gram of carbohydrate. Okay, so आपने अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो you will get 4 kilocalorie. If you take 10 gram then you will get 40 kilocalorie. Okay, foodstuffs are oxidized either with or without help of oxygen. Whatever foodstuff we are eating, okay, वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाते हैं, इधर विद और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ओके, मतलब यहाँ पे ये जो लाइन है दैट विल सी इन डिटेल, ओके, इन अ कमिंग वीडियो. बट ऑक्सीडाइज मतलब क्या? लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन. ओके, इसको हम लोग और अलग तरीके से भी बोल सकते हैं कि रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी बाहर निकलता है. सो फूड स्टफ से एनर्जी बाहर निकलना, ओके, विद द help of oxygen or without help of oxygen. Okay, so oxidation means what? Oxidation means gaining of oxygen or losing of hydrogen. ठीक है, oxidize मतलब क्या? It means XYZ substance combined chemically with the oxygen, okay, and it releases some energy. So what happens when actually molecule is oxidized? ओके, मॉलिक्यूल मतलब कोई भी फूड स्टफ का एक मॉलिक्यूल ले लो. व्हेन इट गेट ऑक्सीडाइज, व्हाट एक्चुअली हैपेंस? सो ऑक्सीडेशन अकर्स व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और इंक्रीजेस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है या फिर यू कैन से हाइड्रोजन लूज किया जाता है. ओके, एंड इट इंक्रीजेस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज, जब मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज किया जाता है, इट सिंपली लूजेज अ एनर्जी. मतलब क्या है? इन शॉर्ट, ये एनर्जी लूज करता है, मतलब रिलीज करता है एनर्जी. ओके, ठीक है. सो लेट्स सी द सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस विच हैपन्स इनसाइड सेल वेयर द फूड स्टफ गेट ऑक्सीडाइज्ड. मीन्स व्हाट? फूड स्टफ से हम लोग एनर्जी निकालते हैं इनसाइड सेल. सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट? लेट मी रिपीट अगेन. सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स ऑब्टेनिंग द एनर्जी, मतलब एनर्जी निकालना विद द हेल्प ऑफ फूड स्टफ. ओके, सो वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन रहेगा और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन भी रह सकता है. ओके, लेट्स सी इन अ डिटेल. सेलुलर रेस्पिरेशन. वी कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फूड एवरी डे. ओके, हम लोग कंज्यूम करते हैं कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट हम लोग को बेसिकली कहाँ से मिलता है? चपाती हम लोग लेते हैं, ओके, रोटी, क्लियर, या फिर भाकरी रहेगा, क्लियर. सो वहाँ से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मिलते हैं. ओके, सीरियल्स हम लोग बोल सकते हैं, सीरियल से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, विच आर मेनली यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. ओके, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हम लोग क्या करते हैं? इट इज यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. दिस एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये जो एनर्जी हम लोग बाहर निकालते हैं, मतलब
सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, एनर्जी लूज होगा मतलब यहाँ पे एनर्जी वो प्रोसेस लूज करेगा तो हमारी सेल को वो एनर्जी मिलने वाला है। ओके, फॉर दिस पर्पज ये एटीपी तैयार करने के लिए इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी निकालने के लिए ग्लूकोज क्या करता है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड। ओके, ग्लूकोज क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाना खाने पे हम लोग को मिलता है। ओके, दैट ग्लूकोज गेट कंबाइंड विद द ऑक्सीजन। ओके, मतलब ऑक्सीडाइज्ड होता है। अब ये ऑक्सीजन हम लोग को कैसे मिलता है, थ्रू द रेस्पिरेशन। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फूड, ओके, इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाना खाने के बाद, एंड एट द सेम टाइम वी आर रेस्पायरिंग, राइट। सो ऑक्सीजन के साथ ये ग्लूकोज क्या हो जाता है, मिक्सड अप हो जाता है स्टेप बाय स्टेप इन द सेल। ओके, सेल के अंदर। ओके, सेल के अंदर इट मीन्स व्हाट, एवरी सेल, मेरे उंगली का सेल भी रहेगा, लेग या फिर स्टमक, वेर एवर, स्किन। ओके, वहां पे जितने भी सेल्स है या वो ईच एंड एवरी सेल में ये प्रोसेस होगा। Okay, step by step in the cell, and this is called cellular respiration. So cellular respiration happens in each and every cell, keep in mind. Okay, इसका नोज से ही या फिर ट्रेकिया ही आएगा या फिर लंग्स ही आएगा, उनमें ही ये प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं है। सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स ईच एंड एवरी सेल में। पॉइंट नंबर 5, सेलुलर रेस्पिरेशन अकर अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे अकर होता है, अमॉन्ग द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय 2 मेथड्स। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। सो उसके 2 टाइप है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट है, ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन, आई मीन टू से सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, एंड सेलुलर अनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं रहता है। बट एरोबिक रेस्पिरेशन के भी 3 टाइप्स नहीं है, 3 स्टेप्स है, मतलब ये स्टेप होने के बाद ये होता है, ये होने के बाद ये होता है। ओके, सो हेयर ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, एंड देन आफ्टर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टेक्स अ प्लेस। उसके बाद ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल खत्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होता है, एंड सो ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। ओके, some of the animal follows this respiration, some of the animals follow anaerobic respiration. Okay, so what is mean by aerobic, what is mean by anaerobic, that we'll see in a detail in coming video. Till the time, thanks and bye bye. So guys, let's start aerobic respiration, okay, in a living organism. So as we said earlier, glycolysis, tricarboxylic acid cycle and electron transfer chain. Okay, this one. Okay, this all comes under, these are the steps of aerobic respiration. So let's first target glycolysis. Okay, so glycolysis means what, it is the process of glycolysis occurs in a cytoplasm. So cytoplasm क्या है, cytoplasm is one of the cell organelle. सेल ऑर्गेनल्स आपको पता है, सेल्स के बहुत सारे ऑर्गेनल्स है जिसमें साइटोप्लाज्म आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, गोल्गी बॉडीज आते हैं, राइट, राइबोसोम आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें से साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, एंड ये जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर और अदर अलग ऑर्गेनल्स रहते हैं, ठीक है, एंड दे आर फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। सो प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो है ये साइटोप्लाज्म में अकर होता है। ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज is oxidized step by step in this process. Okay, molecule of glucose, it means if cytoplasm has a glucose inside it, then what happens, it is get oxidized step by step in the process, and two molecules of each, that is 2 pyruvic acid, 2 ATP, 2 NADH2 and water are formed. NADH2 means nicotinamide adenine डाइन्यूक्लियोटाइड. ओके, आपको इसका नाम पीछे दिया है, यू कैन रीड इट. ओके, सो दिस पॉइंट इज क्लियर, देन विल मूव फॉर द नेक्स्ट. मॉलिक्यूल्स ऑफ, देखो अगर एक बार पायरुविक एसिड आ गया, ओके, ग्लूकोज क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, उससे हम लोग को पायरुविक एसिड मिला. देन आफ्टर दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड formed in this process are converted into molecules of acetyl coenzyme A.
एसिटिल कोएंजाइम ए में वो कन्वर्ट होता है. 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of carbon dioxide are also released during this process. तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में पायरुविक एसिड अगेन ब्रेक डाउन होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में. 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2 are also released during this process. तो ये ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ है. सो लेट्स सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. सो ये प्रोसेस कंप्लीट, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में क्या होता है, बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, दिस वन, ओके, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है, एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है सेल ऑर्गेनेल ही है इनसाइड द सेल, उसको हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं. ओके, साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज ऑपरेटेड ऑन इट इन द माइटोकॉन्ड्रिया. मतलब ये जो साइक्लिक चेन है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का चेन, ओके, ये जो ऑपरेशन है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इट गेट्स ऑपरेटेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. इसमें क्या होता है, एसिटिल पार्ट ऑफ एसिटिल को ए इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है थ्रू दिस साइक्लिक प्रोसेस एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NADH2, FADH2 आर डिराइव्ड. यहाँ पे फिर से विल डिस्कस कि एसिटिल कोएंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है, ओके, दिस एसिटिल पार्ट ऑफ एसिटिल कोएंजाइम, मतलब एसिटिल कोएंजाइम का जो एसिटिल पार्ट है, ओके, इट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज थ्रू दिस साइक्लिक प्रोसेस एंड उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NADH2 एंड FADH2, ये छोटे छोटे सब्सटेंसेस हम लोग को मिलते हैं. So this happens in the tricarboxylic acid cycle. Okay, oxidize का मीनिंग है combine chemically with the oxygen. So जैसे हम लोग ने कवर किया कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में हम लोग को FADH2 मिलता है, NADH2 मिलता है, ATP मिलता है, क्लियर, एंड अलॉन्ग विद दैट वाटर भी मिलता है. ओके, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है. ओके, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड FADH2 जो हम लोग को मिले थे फॉर्म ड्यूरिंग ऑल अबाउ प्रोसेसेस. NADH2 ग्लाइकोलाइसिस में भी हम लोग को मिला था, NADH2 FADH2 हम लोग को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में भी मिला है. ओके, सो ये जो ऑल स्मॉल सब्सटेंसेस हम लोग को मिले हैं, ओके, कंपाउंड, दीज substances participate in the electron transfer chain reaction. ओके, उसे ड्यू टू दिस क्या होता है, 3 molecules of ATP, हम लोग को एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गया अभी. 3 molecules of ATP इनके प्रोसेस की वजह से, मतलब ये जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हम लोग को 3 molecules of ATP आर ऑब्टेन फ्रॉम ईच NADH2. ओके, ईच NADH2 मॉलिक्यूल, मतलब एक NADH2 मॉलिक्यूल से हम लोग को 3 ATP मिलते हैं. ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी यूनिट. ओके, 2 molecules of ATP हम लोग को मिलते हैं फ्रॉम FADH2 मॉलिक्यूल. ओके, तो हम लोग को NADH2 से 3 ATP मिलते हैं, FADH2 से 2 ATP मिलते हैं. ओके, एंड बिसाइड्स ATP, वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शन. तो NADH2 FADH2 ATP भी बनाते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट वाटर ऑल्सो गेट्स फॉर्म इन दिस रिएक्शन. ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, मतलब इसी माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन भी ऑपरेट होता है. ओके, thus a molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration. because हम लोग यहाँ पे every time we are talking कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है. ओके, ऑक्सीडाइज होने के बाद इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द ATP एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो प्रोड्यूस अलॉन्ग विद दिस एनर्जी. मतलब यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हुआ है, पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन हुआ है. ऑक्सीडेशन होने के बाद हम लोग को ATP तो मिला, but along with ATP we also got carbon dioxide in some numbers and water in some number. अभी ATP and water will keep it in our body. कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे. ओके, अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड हर एक सेल में बना है, तो ईच एंड एवरी सेल क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल रिलीज इनटू द ब्लड. ओके, एंड ये ब्लड क्या होगा, बाद में आएगा हार्ट के पास. हार्ट से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के वेयर इट विल पुश इनटू द लंग्स एंड थ्रू लंग्स इट विल मूव आउट थ्रू द बॉडी. उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेल, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना.
क्लियर? तो एटीपी एंड वाटर विल कीप। ओके, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आपका कंप्लीट हुआ है, होप सो, एंड सो ऑन हम लोग का एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। बट अलॉन्ग विद दैट लेट्स गो फॉर द एटीपी, NADH2 FADH2 का फुल फॉर्म। ओके, so that we'll get a clear understanding. Okay, so let's see the full form of NADH2 and FADH2. So NADH2 is what? Nicotinamide adenine dinucleotide. Okay, and FADH2 का क्या है? Flavin adenine dinucleotide. Okay, these both enzymes are formed in the cell and used into the cellular respiration. और इनका ही breakdown होने के बाद हम लोग को ATP भी मिलता है, that you are aware of. Okay, now next is what is ATP. सो एटीपी पे आपको शॉर्ट नोट भी है। ओके, सो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो आई मीन टू से एडेनाइन अलोंग विथ 3 फॉस्फेट कंपाउंड, ओके, और फॉस्फेट, सॉरी नॉट अ कंपाउंड, 3 फॉस्फेट ग्रुप। ओके, 3 फॉस्फेट ग्रुप एंड एडेनाइन एक साथ आने के बाद ये एनर्जी बनता है। सो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज energy rich molecule and energy is stored in the bonds by which the phosphate groups are attached to each other. Okay, यहाँ पे डायग्राम दिया है, let's see it. So this is the adenine, यहाँ पे शुगर है एंड यहाँ पे 3 फॉस्फेट आपको दिख रहा है। ओके, सो ये ATP है जो हम लोग ने अभी अभी डिस्कस किया। ठीक है, These molecules are stored in the cell as per need. ये जो ATP है हमारे बॉडी में, it is a kind of battery. Okay, it is stored in the cells as per need. So chemically ATP is triphosphate molecule, 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, formed from adenosine ribonucleoside. Adenosine ribonucleoside. ठीक है, इट कंटेन्स द नाइट्रोजनस कंपाउंड, इसके अंदर क्या रहते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड रहता है, एडेनाइन, पेंटोस शुगर रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइबोस, ओके, जिसको हम लोग राइबोस बोलते हैं, एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स रहते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, एज पर द नीड एनर्जी इज डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड। जब कभी भी जरूरत पड़ेगी एटीपी विल ब्रेक डाउन लाइक दिस। सो दिस इज द एडेनाइन, राइबोस, 3 फॉस्फेट था, तो इसमें से एक फॉस्फेट उन्होंने क्या किया? रिलीज कर दिया, मतलब ये इसमें से एक फॉस्फेट बाहर निकल के आएगा। ओके, इट मीन्स व्हाट? हम लोग ने एनर्जी यूज कर लिया। एज पर द नीड द एनर्जी इज डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी, हेंस एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। होप सो ये आपको शॉर्ट नोट भी समझ आया है, तो ये आपको 2 टाइम्स लिखना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन ऑल्सो यू कैन गेट इट फ्रॉम मास्टर की और डाइजेस्ट। Glycolysis also we have covered, and tricarboxylic acid cycle also we have covered. Okay, so that's it for today. Okay, bye bye.